So hello students, welcome to EduTap and welcome to this video. I hope your preparation for NABARD grade A examination is going really well. And today we are going to discuss three important tips that can help you improve your preparation that you're already doing. Why? Because अच्छी प्रिपरेशन का मतलब है सिलेक्शन के चांसेस का बढ़ जाना. So आज हम इसी को डिस्कस करेंगे गाइस, कैसे हम कुछ स्टेप्स के साथ इनको चेंज कर सकते हैं. और इस चीज में यू विल गेट अ लिटिल बोनस वेयर विल बी डिस्कसिंग सबसे पहले कि व्हाट आर द थ्री बेसिक स्टेप इन द जर्नी टू नाबार्ड. But before we discuss all that, I have a very quick announcement. So EduTap has recently launched an ultimate guidebook for all the NABARD aspirants. If you are preparing for NABARD grade A examination and you have journal queries related to NABARD organization, like what does NABARD actually do, or if you're just interested in the brief history of NABARD, you will also get it there. Not only that, but if you have any query related to the exam of NABARD, that is of course we are talking about grade A, like how many phases are there, what subject you will have to prepare, उन subjects के syllabus क्या होता है, again you will get the answer of all these queries in this guidebook. Guys, in 30 pages, not only we are providing you answer of all these queries, we are also providing you 6-step strategy as well as the definite sources that will help you crack your examination. Now, you might be thinking कि इस guidebook के लिए, इतनी ultimate guidebook के लिए, what you will have to do? You will have to go in the description box, check out the link and register yourself. No money need to be paid. Yes, this is absolutely free. Register yourself and download yourself this ultimate one-stop comprehensive NABARD guidebook. Now, this is about the guidebook. Let's quickly talk about if you have decided कि you want to crack NABARD examination या कोई भी examination, उसके लिए basic steps क्या होते हैं. देखो, first of all you will dream. तो ड्रीम में हम यहाँ पे लिख देते हैं our dream is NABARD grade A. All right. And कौन से ईयर के लिए? That is for year 2023. So my aim is NABARD grade A 2023. तो ये है हमारा ड्रीम. अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, that will be our hard work. You might be a full-time working aspirant or you might be preparing on your own full-time aspirant हो, सिर्फ आराम से तैयारी कर रहे हो. Hard work you all are doing. Now, इस हार्ड वर्क का रिजल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स यू विल सक्सीड एंड विल बी एबल टू क्रैक नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. ये बेसिक स्ट्रैटेजी है. बट अब ना यहाँ वट एवर यू आर डूइंग मैटर्स अ लॉट. यही से सिलेक्शन होगी या फिर सिलेक्शन रुकेगी. बट सिलेक्शन के लिए वट एवर वर्क ऑलरेडी यू आर पुटिंग ना, इसको इम्प्रूव करना है. और वो इम्प्रूव कैसे करेंगे, आज इसी पे हम बात करेंगे. ये हो हालांकि बहुत ही 3 बेसिक टिप्स आई एम गिविंग यू. But how can you need to put that in the NABARD preparation that you are doing, that you will have to learn through video. So first of all, when we are talking about NABARD, there are 8 subjects, right? तो सबसे पहला इशू क्या आता है कि syllabus बहुत ही wide है. For that, what people do, they refer to a number of sources, and what sources these are? These are the cluster of sources. अब देखो यहाँ देखो, ये स्लाइड खाली है. अब इसी में मैं नाबार्ड के सोर्सेस लगा दूं तो ये यही कितना फिल लग रहा है. थिंक आपके दिमाग को इन सबको ना, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक एक पेज के सिलेबस है, राइट? यू हैव द होल बुक ऑफ 300 पेजेस, 400 पेजेस और समटाइम 1000 पेजेस, राइट? तो आपके दिमाग के लिए उन सब के साथ कीप अप करना इज अ लॉट डिफिकल्ट. सो व्हाट पीपल डू, स्पेशली सेल्फ प्रिपरेशन वाले लोग जो होते हैं, दे collect a lot of source, they spend a lot of time in collecting those sources, and then it becomes very hard to cover each and every source. एग्जाम में जाके कुछ याद नहीं आ रहा. इसको अवॉइड करने के लिए बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, जो यू माइट बी वर्किंग प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए 10 आवर्स 12 आवर्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद भी बच्चे बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हो रही है. उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है. अब इसका हमारे पास तोड़ क्या है? फॉर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, कीप योर सोर्सेज वेरी सिंपल. जो आपके मेरिट सब्जेक्ट है उनके लिए कीप ओनली दीज सोर्सेज. अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सुंडा बुक की जगह यू कैन टेक अरुण कात्यान की बुक, ठीक है? यू कैन टेक सम अदर बुक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो बट क्या रखना है, प्राइमरी सोर्सेज यही रखना है. इनको भी सिलेबस टू सिलेबस कवर करना है. ये है आपके मेरिट सेक्शन के लिए. करंट के लिए यू विल कीप वन न्यूज़पेपर, एनी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर यू विल कीप.
देन पीआईबी यू विल कीप विद यू, और उसके बाद मिनिस्ट्रीज जितनी भी हमारी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज है, बी दैट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उन सबकी वेबसाइट वी विल विजिट, वहां जो न्यूज आ रही है, वहां जो अपडेट्स हो रहे हैं, दैट वी विल कीप इन माइंड। तो इतने ही सोर्सेज रखने हैं सिर्फ हमने करंट के लिए, ये एग्री एआरडी के लिए, अब ईएसआई के लिए इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल प्रॉब्लम के, ये इकोनॉमिक्स एंड ये सोशल इश्यूज के लिए बुक। इससे ज्यादा बुक रख के उनको पेज टू पेज कवर करके फायदा नहीं है। what you will have to do, इन्हीं sources को you will have to revisit again and again, revise again and again, and you will have to fit that in your mind कि मुझे ये चीजें याद करनी है। refer less sources more time rather than referring more sources and giving them less time। तो यहाँ सोर्स कम होने चाहिए, टाइम आपने उनको ज्यादा टाइम रिविजिट करना है। दूसरा, इफ आई टॉक अबाउट द नॉन मेरिट सेक्शन, देखो नॉन मेरिट सेक्शन में मैंने ज्यादा बुक इसलिए नहीं रखी है क्योंकि क्यूआरई अगर कुछ नहीं आता उन केसेस में बुक को रेफर करो इफ यू हैव अ बेसिस, और बुक रेफर नहीं करना चाहते, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ के सीखना चाहते हो या ऑनलाइन जो फ्री सोर्सेज है उनसे पढ़ के करना चाहते हो, तो नाबार्ड का नॉन मेरिट सेक्शन इज वेरी मच डुएबल इफ यू जस्ट प्रैक्टिस मोर एमसीक्यू। अगेन टाइम कम सोर्सेज पे ज्यादा देना है, ज्यादा सोर्सेज कवर करके प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचा, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, इफ यू वांट टू हैव अ शॉर्ट सिलेक्शन इन नाबार्ड, प्लीज कीप दैट इन माइंड। जितना भी टाइम दे रहे हो डजंट मैटर इफ यू डोंट हैव अ प्लान कि मैं टाइम कैसे स्पेंड कर रहा हूं। अगला बंदा हो सकता है 3 घंटे मूवी देख के 4 घंटे पढ़ रहा हो, तुम हो सकता है 8 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हो, लेकिन अगर वो इंसान प्लान के साथ पढ़ रहा है, ही हैव अ स्ट्रैटेजी प्लान, सो ऑफ कोर्स उसकी प्रिपरेशन इज मोर वैल्यूएबल देन यू। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट दिस इज द हार्ड ट्रूथ दैट यू नीड टू लर्न। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो सेकंड मिस्टेक आती है वो क्या होता है, पीपल आर कंफ्यूज कि हम हार्ड स्टडी करें कि स्मार्ट स्टडी करें। हाउ दे डू दैट, कुछ बच्चे होते हैं दे गिव 12-13 आवर्स ऑफ स्टडी, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, बट उनको ये नहीं पता हम पढ़ क्या रहे हैं। जो जहां दिख गया एग्रीकल्चर, जहां दिख गया रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमी, दे जस्ट स्टार्ट मगिंग दैट अप विदाउट एनी प्लान। अब दूसरे बच्चे क्या होते हैं, दे आर सो कॉन्फिडेंट कि भाई जो हमने पढ़ा है वही आएगा, दे जस्ट टेक वन सोर्स, उसको पढ़ दिया, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। Guys, both kind of studies are not valuable if you don't have a plan। देखो इंडिया का मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल देती हूँ। काफी बार क्या होता है, घर बन जाते हैं, रोड बन जाते हैं, उसके बाद याद आता है कि नीचे ड्रेनेज की पाइप नहीं है। देन व्हाट वी डू, सड़क खोदी जाती है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, वहां लोगों को दिक्कतें हो रही होती हैं, कोई गिर जाता है उस गड्ढे में, सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो वही क्या होता है, इफ दे हैव अ प्लान ना कि हम ये करेंगे, देन विल डू दिस, देन विल डू दिस, तो ये जितना काम था वो बचाया जा सकता था। तो यही होता है, इफ यू हैव अ गुड प्लान, हो सकता है आपने 1 घंटे में प्लान प्रिपेयर किया, बट वो वेस्ट नहीं होगा, वो आपके 10 आवर्स की जो वर्क है, जो एक्स्ट्रा वर्क आपको करना है, उसको प्रिवेंट करेगा। उस टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हैव अ स्टडी प्लान, हैव डेफिनेट सोर्सेस, उनको टाइम पे को ब्रेक करो, प्रायोरिटी पे टाइम करो और उसके बाद प्रिपेयर करो। ठीक है, सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अब प्लान हमने एक पहले दे रखा था, ठीक है, ऑल दो डेट माइट बी चेंज, ठीक है, अभी भी नोटिफिकेशन आई नहीं है, स्पेकुलेशन है कि अप्रैल में आ जाएगी, मई में आ जाएगी, दैट वी विल सी, बट आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए कि आई विल कवर एआरटी स्टैटिक। अब अगर इफ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, हैव अ गुड होल्ड ऑन एग्रीकल्चर, इन दैट केस यू कैन पिक अप ईएसआई करंट और इसको सीधे रिवीजन में ले आओ, या जो थोड़े से एग्रीकल्चर से हटके टॉपिक्स है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, उनको करो, बाकी ईएसआई करंट पे फोकस करो। हैव योर गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है। अगर इफ यू आर समबडी इकोनॉमिक्स से कर रखे, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ईएसआई स्टैटिक तो मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इन दैट केस फोकस ऑन एआरटी स्टैटिक एंड करंट पोर्शन, ठीक है। सो यू विल हैव टू वर्क देयर। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छा है, फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट, तो ये आपको अपने तरीके से फाइन ट्यून करना होगा, बट यू नीड टू हैव अ क्लियर आइडिया, ये प्लान होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं पहले करूंगा, ये सब्जेक्ट रिलेटिवली लेस है, नॉन मेरिट है, इसको मैं थ्रू ऑब्जेक्टिव करूंगा, बट यू नीड टू हैव अ प्लान फॉर दैट, सो दैट ऐसा ना हो कि यू आर गिविंग 10 आवर्स और ऐसा भी ना हो कि यू आर ओनली आधे घंटे में नाबार्ड निकालने की सोच रहे हो। यू विल हैव टू मेक द हाइब्रिड ऑफ स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड स्टडी,
ठीक है, हार्ड वर्क भी करना है आपने और स्मार्ट वर्क भी करना है, रिप्लेस नहीं करना है, इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, दिस विल बी द टिप 2। अब टिप 3 जो है ना, दैट टॉक्स अबाउट द रूट। क्या रीजन है कि वी आर जंपिंग फ्रॉम सोर्सेज टू सोर्सेज, भाई कवर कर लो सब। क्या रीजन है कि वी डोंट हैव अ प्लान, वो आता है माइंडसेट से। गाइस, अगर आप उस माइंडसेट के साथ है कि आई बी एबल टू विन दिस कॉम्पिटिशन, मैं जीतूंगा नाबार्ड को, आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, व्हाट यू विल डू, यू नो योर माइंड इज लाइक अ प्लांट एंड यू आर फीडिंग इट योर थॉट्स। अब इन थॉट्स में यू कैन डू वन थिंग, एक तो तुम कह सकते हो कि ठीक है आई विल डू इट, ठीक है। दूसरा यू कैन से कि कंपटीशन बहुत है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं एंड योर माइंड विल वर्क अकॉर्डिंगली। अगर आप ये बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है, होने ही नहीं वाला है, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगा, आपको एक पीआईबी की न्यूज पढ़ने लगेगा, अरे पहाड़ है कहाँ याद होगा। लेकिन अगर आप ऐसा है कि नहीं मुझे करना है, इसके लिए जो मेरे पास सोर्सेस है वो मुझे करने हैं, तो आपके दिमाग को रहेगा कि हाँ भाई मुझे निकालना है पेपर और मुझे याद करना है। तो कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपका अगर माइंडसेट नहीं है ना, तो यू विल यू नो रास्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी, कभी एक दिन प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। अगर आपका माइंडसेट ये वाला है कि पेपर टफ है, कंपटीशन ज्यादा है, यू विल गिव अप, वो होता है। लेकिन अगर आपका एक दिन मिस हो जाता है और आपकी मेंटालिटी ये है कि नहीं मुझे पेपर करना है, सो व्हाट यू विल डू, आप उसको कहीं ना कहीं शेड्यूल में लाएंगे, आप उसको ठीक करेंगे रादर देन गिविंग अप। तो आपको क्या रखना है, जो अपना माइंडसेट रखना है, दैट शुड बी अ विनिंग माइंडसेट। उसके लिए व्हाट यू कैन डू, रीड न्यूज़पेपर, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जो आपको इंकरेज करें, बी दैट योर फैमिली, बी दैट योर मदर, बी दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स, बी दैट योर फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव आपको एक ग्रुप सेट रखना है, जो बातें करोगे वो पॉजिटिव रखनी है कि ओके वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसके लिए वी आर वर्किंग। सो आपका माइंडसेट वो विनिंग वाला करना है, बाकी सब यू विल, कोई भी हर्डल आए आप कर लोगे, सिलेबस ज्यादा है। आई एम नेवर सेइंग कि नाबार्ड निकालना बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी होता तो भाई बतेरे लोग होते, ठीक, कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं है कि बहुत ईजी होता है, हम सब ने कर रखा है, इट इज नॉट लाइक दैट। बट आपकी डिटर्मिनेशन, आपका हार्डवर्क और आपका माइंड सेट कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन। कोई एग्जामिनेशन आसान नहीं है, बट आपके माइंड सेट से ना क्रैक हो, आपके हार्डवर्क से ना क्रैक हो, ऐसा भी कोई एग्जामिनेशन नहीं है। सो आई होप विद दैट यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर अभी भी लग रहा है कि हाँ मैम ये इश्यू है, तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल कि मैम हेल्प मिली, तो मुझे ये भी बताओ, इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एज वेल। एंड गाइज, हमेशा की तरह मेक द कमिटमेंट अगेन कि वी आर गोइंग टू क्रैक नाबार्ड 2023। अपना माइंडसेट दिखाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यही होता है, अगेन वट एवर यू आर फीडिंग वही माइंडसेट हमारा होता रहेगा। हैव पॉजिटिव थॉट, हैव दैट इन यू कि मैं क्रैक करूंगा एग्जाम। सो आई होप यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। इफ यू आर न्यू हियर, अब मैं वेट करूंगी कि आप नीचे लिखें कि आई विल क्रैक योर नाबार्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। मैंने बता दिया है कि वाई, वी सटनली यू नो गिव यू हिंट्स, ये लिखना है, right? So with that, let's end the video. I hope you will find this useful. If you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and if you want the PDF of the content that we upload, you can always join our Telegram channel, right? So that will be it for the video. If you have any query, so you can always call to us, you can always write to us, you can always check our website. So that will be it for the video.